اسلامک شارٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کی بیوی لیلا خیمے کے باہر ایک اونٹ پر بیٹھی تھی۔ اسے کہیں جانا نہیں تھا۔ وہ اونچی ہو کر میدان جنگ کو دیکھ رہی تھی۔ میدان خالی ہو چکا تھا۔ اسے باغ کی دیوار اور درختوں کے بالائی حصے نظر آ رہے تھے، لیکن یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ وہ اونٹ سے کود آئی اور خیمے میں چلی گئی۔ لیلا نے مجاہ سے کہا، ابن مرارہ، تمہارا نبی میدان خالی کر گیا ہے۔ خدا کی قسم، بنو حنیفہ بھاگ گئے ہیں۔ مجاہ نے کہا، میں نے کبھی نہیں سنا کہ 13,000 نے 40,000 کو شکست دی ہو۔ میدان چھوڑ جانا مسلمہ کی چال ہو سکتی ہے، پس پائی نہیں۔ لیلا نے کہا، سب باغ کے اندر ہیں۔ مجاہ بن مرارہ نے کہا، اگر سب باغ میں ہیں تو وہاں سے زندہ صرف بنو حنیفہ نکلیں گے۔ اگر مسلمان باغ میں میرے قبیلے کے پیچھے چلے گئے ہیں تو سمجھ لو کہ انہیں موت باغ میں لے گئی ہے۔ بنو حنیفہ ناقابل تسخیر ہے۔ لیلا نے کہا، آج فیصلہ ہو جائے گا۔ ٹھہرو، مجھے گھوڑے کے ٹاپ سنائی دے رہے ہیں، میرے خاوند کا قاصد ہوگا۔ وہ خیمے سے نکل کر کھڑی ہو گئی اور بولی، وہ فتح کی خبر لایا ہوگا، وہ آ رہا ہے۔ گھوڑا جو سر پر دوڑا آ رہا تھا لیلا کے قریب آ رکا اور سوار گھوڑے سے کود آیا۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ تھے۔ لیلا انہیں اکیلا دیکھ کر گھبرائی۔ سالار کے اکیلے آنے کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ اس کی سپاہت تر بتر ہو گئی ہے۔ لیلا نے پوچھا، میدان جنگ کی کیا خبر ہے؟ آپ اکیلے کیوں آئے ہیں؟ خالد رضی اللہ عنہ نے جوشیلی آواز میں کہا، خدا کی قسم، میں نے بنو حنیفہ کو کاٹ دیا ہے۔ مسلمہ کذاب مارا گیا ہے، اور وہ قیدی کہاں ہے؟ لیلا نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر اور سکون کی آہ بھر کر کہا، مجاہ کہتا ہے کہ بنو حنیفہ ناقابل تسخیر ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ہانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، وہ ہے کہاں؟ کیا وہ اسے چھڑا کر لے گئے ہیں؟ خیمے کے اندر سے مجاہ کی آواز آئی، میں یہی ہوں ولید کے بیٹے، میں تیری اس بات کو سچ نہیں مانوں گا کہ مسلمہ مارا گیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے خیمے کے اندر جا کر کہا، میرے ساتھ چل، ہو سکتا ہے تیری بات سچی ہو، میں مسلمہ کو نہیں پہچانتا۔ تیرا قبیلہ یہ شور مچاتا بھاگ گیا ہے کہ مسلمہ مارا گیا ہے۔ میرے ساتھ آ اور لاشوں میں اس کی لاش دیکھ کر بتا کہ یہ ہے اس کی لاش۔ مجاہ نے پوچھا، پھر کیا ہوگا؟ مجھے آزاد کر دو گے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم، میں اس قبیلے کے ایک سردار کو بھی آزاد نہیں کروں گا جو میرے دین کا دشمن ہے۔ رسالت میں شرکت کا دعویٰ کرنے والے اور اس دعوے کو ماننے والوں کو میں کیسے بخش دوں؟ اللہ کے سوا تجھے کوئی نہیں بخش سکتا۔ مجاہ بن مرارہ نے کہا، او ولید کے بیٹے، میں نے اسے کب نبی مانا تھا؟ وہ چرب زبانی اور شعبدہ بازیوں سے نبی بن گیا تھا، اور تو نے دیکھ لیا کہ کتنا بڑا لشکر اس کا مرید ہو گیا تھا۔ اگر میں اسے نبی نہ مانتا تو وہ میرے سارے خاندان کو زندہ جلا دیتا، اور یہ وجہ بھی تھی کہ میں اپنے قبیلے سے اپنے آپ کو کاٹ نہیں سکتا تھا۔ اگر تو میرے قتل کا حکم دے گا تو یہ ایک بے گناہ کا قتل ہوگا۔ لیلا نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، اس نے مجھے اپنے ان لوگوں سے بچایا ہے جو ہماری خیمہ گاہ کو لوٹنے اور تباہ و برباد کرنے آئے تھے۔ اس نے انہیں کہا کہ عورتوں کے پیچھے مت پڑو، پہلے آدمیوں کے پیچھے جاؤ۔ وہ چلے گئے۔ اس نے انہیں یہ بھی نہ کہا کہ وہ اس کی بیڑیاں کھول دیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تو نے اس عورت پر رحم کیوں کیا مجاہ؟ وہ بولا، کیونکہ اس نے مجھے قید میں بھی وہی عزت دی ہے جو مجھے اپنے قبیلے میں ملا کرتی ہے۔ میں نے اسے اس سلوک کا صلہ دیا ہے جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے۔ کیا میں ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ اپنے آدمیوں سے کہتا کہ میری بیڑیاں کاٹ دیں؟ پھر میں تیری اتنی حسین بیوی کو اپنی لونڈی بنا لیتا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، بے شک تو عزت کے لائق ہے مجاہ، میں تیری بیڑیاں اپنے ہاتھوں سے کاٹتا ہوں، پھر میرے ساتھ چلنا اور بتانا کہ مسلمہ کی لاش کون سی ہے۔ مجاہ بن مرارہ خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ خیمے سے نکلا تو اس کے پاؤں میں بیڑیاں نہیں تھی۔ باہر خالد رضی اللہ عنہ کے دو محافظ کھڑے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ اکیلے ادھر آئے تھے۔ ان کے محافظ دستے کو پتہ چلا کہ سپہ سالار کسی اور طرف نکل گئے ہیں تو دو محافظ ان کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم پھر کر ان کی خیمے گاہ تک جا پہنچے۔ وہ انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ مجاہ نے اپنی آنکھوں سے میدان جنگ کی حالت دیکھی۔ اسے اپنے قبیلے کی لاشوں کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ مجاہ نے کہا، مجھے یقین نہیں آ رہا، دیکھ کر بھی یقین نہیں آ رہا، کیا اتنے تھوڑے مسلمان اتنے بڑے لشکر کو شکست دے سکتے ہیں؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ فتح انسانوں کی نہیں، یہ سچے عقیدے اور اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح ہے۔ بنو حنیفہ باطل عقیدے کے لیے میدان میں اترے تھے، ہماری تلواروں نے اس عقیدے کو کاٹ دیا ہے اور اتنا بڑا لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ وہ لاشوں اور تڑپتے زخمیوں میں سے گزرتے باغ تک چلے گئے۔ اندر گئے تو وہاں لاشوں پر لاشیں پڑی تھیں۔ مسلمان لاشوں کے ہتھیار اکٹھے کر رہے تھے۔ بنو حنیفہ میں سے جو زندہ تھے وہ ادھر ادھر بھاگ گئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے وحشی بن حرب کو بلایا اور اس سے پوچھا، اس شخص کی لاش کہاں
वहाँ है जिसे उसने मुसलमा समझकर हलाक किया है। वाशी खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को वहाँ ले गया जहाँ मुसलमा की लाश पड़ी थी। उसने लाश की तरफ इशारा किया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, नहीं, ये ठिगना और बदसूरत आदमी मुसलमा नहीं हो सकता, इसके चेहरे पर कराहियत है। मुजा ने कहा, यही है, ये मुसलमा की लाश है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, ये उस शख्स की लाश है जिसने हजारों लोगों को गुमराह किया। ये शख्स एक फितना था। मुजा ने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, इब्ने वलीद, फतह पर खुश न हो, तेरे लिए असल मुकाबला तो अभी बाकी है। पूछा, किसके साथ? मुजा ने जवाब दिया, बनु हनीफा के साथ। ये तो वो लश्कर था जो मैदान में आकर लड़ा था। ये तो छोटा सा एक हिस्सा था, इससे भी बड़ा लश्कर यमामा में किले के अंदर तैयार खड़ा है। अपने जानी नुकसान को देख और सोच के तेरी ये सिपाह जो बहुत कम हो गई है, इतने बड़े ताज़तम लश्कर का मुकाबला कैसे कर सकेगी? तेरे सिपाही थक कर चूर हो चुके हैं। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने लाशों सटे हुए बाग में निगाह दौड़ाई। उनका लश्कर वाकई लड़ने के काबिल नहीं रहा था। जानी नुकसान बर्दाश्त के काबिल नहीं था। जख्मियों की तादाद भी ज्यादा थी। बाकी लश्कर की जिस्मानी कैफियत ये हो चुकी थी कि अल्लाह के सिपाही इतने थक गए थे कि जहाँ जगह देखते वहीं लेट जाते और सो जाते। वो अपने से 3 गुना ज्यादा लश्कर से लड़े थे। उन्हें आराम की जरूरत थी। मुजा ने कहा, अगर तू मेरी तजवीज मान ले तो मैं किले में जाकर सुलह की बात करता हूँ। मेरा कबीला मेरी बात मान लेगा। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े काबिल सिपाह सालार थे। जंगी क़यादत में अपनी मिसाल आप थे। वो दुश्मन को सिर्फ शिकस्त देकर उसे फतह नहीं समझते थे, बल्कि अपनी फतह को उस वक्त मुकम्मल समझते जब भागते हुए दुश्मन का ताक़ुब करके उसकी बस्तियों को अपने कब्जे में ले लेते। उनका उसूल था कि दुश्मन को सांप समझो और उसका सर कुचल कर भी देखो कि उसमें जरा सी भी हरकत बाकी न रह जाए। खुद सरी को खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु खूबी समझते थे। उनमें डिसिप्लिन बड़ा ही सख्त था। उसके बावजूद जहाँ सूरत हाल पेचीदा हो जाती, खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु अपने नायब सालारों से मशवरे और तजावीज लेते। अब मुजा बिन मुरारा ने सुलह की बात की तो खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये जानते हुए कि दुश्मन पसपा हो चुका है, इस हकीकत को भी सामने रखा कि उनके मुजाहिदीन लड़ने के काबिल नहीं रहे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने नायब सालारों को बुलाया और उन्हें बताया कि बनु हनीफा का एक सरदार मुजा बिन मुरारा सुलह की पेशकश कर रहा है। अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा, असल फितना तो खत्म हो चुका है। मुसलमा कज़्ज़ाब के मर जाने से बनु हनीफा का दमखम टूट चुका है। मैं तो ये बेहतर समझता हूँ कि यमामा का मुहासरा फौरन कर लिया जाए और दुश्मन को सस्ताने की मोहलत न दी जाए। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ने कहा, सिर्फ यमामा नहीं, बनु हनीफा मैदानी जंग से भागकर ऐसी जगहों में छुप गए हैं जो छोटे छोटे किले हैं। पहले उन्हें पकड़ना जरूरी है, उसके बाद सुलह की बात हो सकती है। अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा, सुलह की शराइत हमारी होंगी। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, क्या तुम्हारी नजर अपने लश्कर की जिस्मानी हालत पर भी है? अभी शहीदों और जख्मियों की गिनती हो रही है। खुदा की कसम, किसी जंग में हमारा इतना खून नहीं पिया जितना ये जंग पी गई है, और शायद हमें अभी और खून देना पड़ेगा। क्या तुम बेहतर समझोगे कि दुश्मन के जो आदमी इधर उधर छुप गए हैं उन्हें पकड़ा जाए ताकि ये यमामा के किले में जाकर हमारे मुकाबले में ना सके? अब्दुर्रहमान ने कहा, हम यकीनन इसी को बेहतर समझते हैं। अगर हम उन्हें पकड़ लें तो सुलह की क्या जरूरत रह जाएगी? खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मुजा ने बताया है कि उनके जिस लश्कर से हम लड़ चुके हैं उससे ज्यादा लश्कर यमामा के अंदर मौजूद है। तुम मेरी इस राय को सही मानोगे कि हमारी सिपाह लड़ने के काबिल नहीं रही। तुम देख रहे हो कि हमारे मुजाहिदीन थकन से बेहाल होकर जहाँ बैठते हैं वहाँ सो जाते हैं। हमारे लिए कुमक भी नहीं रही। अगर कुमक मंगवाई भी जाए तो बहुत दिन लग जाएंगे। इतने दिनों में दुश्मन मुनज़्ज़म हो जाएगा और उस पर हमारी जो दहशत गालिब आई है वो उतर जाएगी। अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, इब्ने वलीद, तुमने खुद भी तो कुछ सोचा होगा। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, हाँ इब्ने उमर, मैंने सोचा है कि इधर उधर बिखरे हुए दुश्मन को पकड़ा जाए, फिर यमामा का मुहासरा किया जाए और इस दौरान मुजा यमामा में जाकर अपने सरदारों के साथ सुलह की बात करें। सुलह के लिए हम ये शर्त जरूर रखेंगे कि बनु हनीफा शिकस्त तस्लीम करके हथियार डाल दें। अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, यही बेहतर है, मैं भी इसी को बेहतर समझता हूँ। अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, फिर ये काम अभी शुरू कर दो। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, दोस्तों को मुख्तलिफ समतों में रवाना कर दो और उन्हें कहो कि बनु हनीफा का कोई आदमी, औरत या बच्चा कहीं भी नजर आ जाए तो उसे पकड़ कर ले आओ। दस्तों को रवाना कर दिया गया और खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुजा को अपने पास बिठा लिया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुजा से कहा, इब्ने मुरारा, मुझे तुझ पर एतमाद है और मैं तुझे इस एतमाद के काबिल समझता हूँ। जाओ और अपने सरदारों से कह कि हम सुलह के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त ये होगी कि तुम्हारे हथियार हमारे सामने जमीन पर पड़े होंगे। मुजा ने कहा, मैं इसी शर्त पर सुलह करवाने की कोशिश करूंगा, लेकिन इब्ने वलीद अपनी फौज की हालत देख ले। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं मजीद खून खराबे से हाथ रोकना चाहता हूँ। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, क्या तू नहीं चाहेगा कि तुम्हारे और हमारे जो आदमी जिंदा हैं वो जिंदा ही रहें? अपने कबीले में जाकर देख, आज कितनी हजार औरतें बेवा और कितने हजार बच्चे यतीम हो चुके हैं।
और ये भी सोच के बनु हनीफा की कितनी औरतें हमारी लौंडियां बन जाएंगी। उस वक्त की तहरीरों से पता चलता है कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की ये बात सुनकर मुजा के होंठों पर ऐसी मुस्कुराहट आ गई जिसमें तमस्खर या तंज की झलक थी। वो उठ खड़ा हुआ, बोला, मैं जाता हूँ। इब्न वलीद, तेरी ख्वाहिश पूरी करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने खेमे की तरफ चल पड़े। वो लाशों और जख्मियों को देखते जा रहे थे। लैला ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को दूर से देखा और दौड़ी आई। लैला ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, क्या तुमने उसे छोड़ दिया है? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे बताया कि उन्होंने मुजा को किस मकसद के लिए छोड़ा है। लैला ने कहा, इब्न वलीद, इतने इंसानों का खून किसकी गर्दन पर होगा? मैंने इतनी ज्यादा लाशें कभी नहीं देखी। जब तक इंसानों में इंसानों को अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बनाने की ज़हनियत मौजूद रहेगी, इंसानों का खून बहता रहेगा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैंने भी इतनी लाशें कभी नहीं देखी। आने वाला जमाना इससे ज्यादा लाशें देखेगा। हक और बातिल आपस में टकराते रहेंगे। मैं इसीलिए सुलह की कोशिश कर रहा हूँ कि और खून न बहे। इससे आगे न जाना, तुम जो देखोगी उसे तुम बर्दाश्त न कर सकोगी। आसमान से गिद्ध उतरने लगे थे और उन्होंने लाशों को नोचना शुरू कर दिया था। कुछ मुसलमान लाशों के दरमियान अपने जख्मी साथियों को तलाश करते फिर रहे थे। उन्हें उठा उठा कर खैमागाह की तरफ ला रहे थे। बाकी सिपाह बनु हनीफा के छुपे हुए आदमियों को पकड़ने के लिए चली गई थी। रात को खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को इत्तलात मिलने लगी कि बनु हनीफा के आदमियों को ला रहे हैं। बाज के साथ औरतें और बच्चे भी थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया कि औरतों और बच्चों को सर्दी और भूख से बचाया जाए, लेकिन खैमागाह लुट चुकी थी। खुराक की किल्लत थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि खुद भूखे रहो, कैदी औरतों और बच्चों के पेट भरो। इसका हल ये निकाला गया कि मुसलमान मुजाहिदीन लाशों से खजूरों वगैरह की थैलियां खोल कर ले आए। हर सिपाही अपने साथ खाने पीने का कुछ सामान रखता था। ये औरतों और बच्चों को दिया गया। अल सुबह मुजा यमामा से वापस आया और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के खेमे में गया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, क्या खबर लाए हो इब्न मुरारा? मुजा ने कहा, खबर बुरी नहीं, लेकिन तुम उसे अच्छा नहीं समझोगे। बनु हनीफा तुम्हारी शर्त पर सुलह करने को तैयार नहीं। वो तुम्हारी गुलामी कबूल नहीं करेंगे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, खुदा की कसम, मैं उन्हें अपना गुलाम नहीं बनाना चाहता। हम सब अल्लाह के रसूल के गुलाम हैं। मैं उन्हें उस सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदे का गुलाम बनाऊंगा। मुजा ने कहा, वो इस शर्त को भी नहीं मानेंगे। और ये भी देख के तेरे पास रह क्या गया है इब्न वलीद। मैंने जमामा के अंदर जाकर देखा है, एक लश्कर है जो ज़र्रा पहने तेरी छोटी सी फौज को लहू लुहान कर देने के लिए तैयार है। कभी ये हिमाकत न करना कि जमामा को आके महासरे मिलेंगे। तू कुचला जाएगा इब्न वलीद। जोश को छोड़ और होश की बात कर। अपनी शर्त को नरम कर। मैंने बनु हनीफा को ठंडा कर लिया है। उस लश्कर की आंखों में खून उतरा हुआ है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु गहरी सोच में खो गए। मुजा ने उन्हें कोई नई बात नहीं बताई थी। ये तो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु देख ही चुके थे कि उनके पास जो सिपाह रह गई है वो लड़ने के काबिल नहीं रही। इस सिपाह को आराम की जरूरत थी, लेकिन वो रात भर दुश्मन के छुपे हुए आदमियों को तलाश और गिरफ्तार करती रही। अब तो उन मुजाहिदीन के सर डोल रहे थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने गहरी सोच से निकल कर कहा, इब्न मुरारा, तुझे शायद मालूम ना हो, अपने उन सरदारों से पूछ लेना जो इस जंग में शरीक थे कि हमारे पास बनु हनीफा का कितना माल और साजो सामान है और कितने बाग और कितने कैदी हमारे कब्जे में हैं। वापस जाओ और अपने सरदारों से कहे कि मुसलमान आधा माल गनीमत, आधे बाग और आधे कैदी वापस कर देंगे। उन्हें समझा कि जमामा और उसकी आबादी को तबाही में न डाले। इब्न मुरारा चला गया। इस दौरान मजीद कैदी लाए गए। मुजा शाम से कुछ पहले वापस आया और उसने बताया कि बनु हनीफा का कोई सरदार इस शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं। मुजा ने ये भी कहा कि बनु हनीफा अपनी शिकस्त और अपने हजारों मकतूलीन के खून का इंतकाम लेंगे। मेरी बात कान खोल कर सुन इब्न मुरारा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने झुंझला कर कहा, अगर बनु हनीफा समझते हैं कि हम कलील तादाद में होने की वजह से डर जाएंगे तो उन्हें जाकर कह दे कि मुसलमान कट मरेंगे, तुम्हें इंतकाम की मोहलत नहीं देंगे। मुजा ने मुस्कुराकर कहा, गुस्से में ना वलीद के बेटे, हमारा जो माल गनीमत, बाग और कैदी तुम्हारे पास हैं, उनका चौथाई हिस्सा अपने पास रख ले, बाकी हमें दे दे और आह सुलह कर लें। सुलहनामा तहरीर होगा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु एक बार फिर सोच में पड़ गए। मुजा ने कहा, मैं तुझे एक बार फिर खबरदार करता हूँ वलीद के बेटे, ये मेरा कमाल है कि मैंने बनु हनीफा को सुलह पर राजी कर लिया है। मैंने उनकी लानत मलामत बर्दाश्त की है। उन्होंने मुझे गद्दार भी कहा है। वो कहते हैं कि तुम मुसलमानों से इनाम लेकर हमें उनका गुलाम बनाना चाहते हो। वो कहते हैं कि हमारी तादाद अगर कम भी होती तो भी हम सुलह न करते। हमारे पास न साजो सामान की कमी है न खुराक की। इन चीजों की कमी है तो मुसलमानों को होगी। वो कहते हैं कि इतनी सख्त सर्दी में मुसलमान कब तक महासरे में बैठेंगे। रातों की सर्दी को वो खुले आसमान तले बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। वो ये भी जानते हैं कि तेरी इस छोटी सी फौज के पास खैमे भी नहीं है। सोच ले इब्न वलीद, अच्छी तरह सोच। अगर तुझे शक है तो जरा आगे जाकर यमामा की दीवारों पर एक नजर डाल
और देख के एक दीवार तो कले की है और उसके ऊपर एक दीवार इंसानी जिस्मों की। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु बेशक अपनी कमजोरियों से आगाह थे, लेकिन वो दुश्मन की हर शर्त मानने को तैयार नहीं हो सकते थे। वो अपने खेमे से बाहर निकल गए। उनके नायब सालार बाहर खड़े थे। सालारों ने बेताबी से खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि सुलह की बात कहाँ तक पहुंची। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनसे कहा, मेरे साथ आओ। नायब सालार खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ चल पड़े। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु उन्हें बताते गए कि मुजा सुलहनामे की क्या शर्त लाया है। वो चलते गए और ऐसी जगह जा रुके जहाँ से यमामा शहर की दीवार नजर आती थी। उन्होंने देखा कि दीवार पर आदमी ही आदमी थे। मुजा ने ठीक कहा था कि शहर की दीवार के ऊपर इंसानी जिस्मों की दीवार है। इससे साफ जाहिर होता था कि शहर में बहुत बड़ा लश्कर मौजूद है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने नायब सालारों से कहा, मेरा ख्याल है कि हमने मुहासरा किया तो हम नुकसान उठाएंगे। दीवार पर जो मखलूक खड़ी है उसके तीर हमें दीवार के करीब नहीं जाने देंगे। हमारे पास मरवाने के लिए इतने ज्यादा आदमी नहीं। एक नायब सालार ने कहा, मैं तो सुलह की राय दूंगा। जिस फितने को हम खत्म करना चाहते थे वो खत्म हो चुका है। एक और नायब सालार ने कहा, अब हम सुलह कर लें तो हम पर कौन उंगली उठा सकता है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु वापस अपने खेमे में आए और मुजा को बताया कि वो सुलह के लिए तैयार हैं। उसी वक्त सुलहनामा तहरीर हुआ जिस पर खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने खिलाफत की तरफ से और मुजा बिन मुरारा ने बनु हनीफा की तरफ से दस्तखत किए। इसमें एक शर्त ये भी थी कि मुसलमान यमामा के किसी आदमी को जंगी मुजरिम करार देकर कत्ल नहीं करेंगे। मुजा वापस चला गया। उसी रोज उसने यमामा के दरवाजे खोल दिए और खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को शहर में मदऊ किया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु अपने सालारों और कमांडारों के साथ यमामा शहर के दरवाजे तक पहुंचे। उन्होंने ऊपर देखा, दीवारों पर अब एक आदमी भी नहीं खड़ा था। बुर्ज भी खाली थी। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को तवक्को थी कि किले के अंदर उन्हें बनु हनीफा का वो लश्कर नजर आएगा जिसके मुताल्लिक मुजा ने उन्हें बताया था कि मुसलमानों को कुचल डालेगा, मगर वहाँ किसी लश्कर का नामो निशान न था। वहाँ औरतें थी, बच्चे और बूढ़े थे। जवान आदमी एक भी नजर नहीं आता था। औरतें अपने घरों के सामने खड़ी थी, बाज मुंडेरों पर थी। इनमें ज्यादातर औरतें रो रही थी। उनके खावंद बाप, भाई या बेटे जंग में मारे गए थे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुरारा से पूछा, वो लश्कर कहाँ है। मुजा ने दरवाजे के सामने और छतों पर खड़ी औरतों की तरफ इशारा करके कहा, देख नहीं रहे इब्ने वलीद, ये है वो लश्कर जो शहर की दीवारों पर तीर कमान और बर्छियां उठाए खड़ा था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने हैरान सा होकर पूछा, ये औरतें? मुजा ने कहा, हाँ वलीद के बेटे, शहर में कोई लश्कर नहीं, जहाँ सिर्फ बूढ़े आदमी हैं जो लड़ने के काबिल नहीं, औरतें हैं और बच्चे हैं। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, क्या ये हमारे हमले को रोक सकते थे? क्या औरतें हमारे मुकाबले में आई थी? मुजा ने कहा, नहीं इब्ने वलीद, ये मेरी एक चाल थी। शहर से तमाम आदमी लड़ने के लिए चले गए हैं। शहर में कोई जवान आदमी नहीं रहा। मैं अपने कबीले को तबाही से बचाना चाहता था। मैंने तमाम औरतों, बूढ़ों और कमसिन लड़कों को जिर्रा और सरों पर खोदें पहनाई और उनके हाथों में तीर कमान और बर्छियां देकर दीवार पर खड़ा कर दिया। मैंने खुद बाहर जाकर देखा, पता नहीं चलता था कि ये औरतें, बूढ़े आदमी और कमसिन लड़के हैं। मैंने तुझे मौका दिया कि दीवार पर एक नजर डाल ले ताकि तू इस झांसे में आ जाए कि यमामा में बहुत बड़ा लश्कर मौजूद है, और तू मेरे झांसे में आ गया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु खुशमगी हुए। वो मुजा को इस धोखे की सजा दे सकते थे, लेकिन उस अहदनामे की खिलाफ वर्जी उन्हें गवारा नहीं थी जिस पर वो दस्तखत कर चुके थे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुजा से कहा, खुदा की कसम तूने मुझे धोखा दिया है। मुजा ने कहा, मैं तुझे धोखा दे सकता हूँ, अपने कबीले की औरतों और बच्चों से गद्दारी नहीं कर सकता। मैं इन्हें तेरी तलवारों से बचाना चाहता था, मैंने इन्हें बचा लिया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, तू खुशकिस्मत है कि मैं मुसलमान हूँ। इस्लाम मुआहिदा तोड़ने की इजाजत नहीं देता। मैं सुलहनामे पर दस्तखत कर चुका हूँ, वरना मैं तुम्हारी इन तमाम औरतों को लौंडिया बना देता। मुजा ने कहा, मुझे मालूम था कि तू ऐसा नहीं करेगा। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, लेकिन एक बात सुन ले इब्ने मुरारा, मैंने मुआहिदा सिर्फ यमामा शहर के लिए किया है, इसमें इर्द गिर्द के इलाके शामिल नहीं। मैं पाबंद हूँ कि यमामा के अंदर किसी जंगी मुजरिम को कत्ल न करूँ। यमामा के बाहर मैं जिसे समझूंगा कि उसे कत्ल होना चाहिए, उसके कत्ल से मैं गुरेज नहीं करूंगा। इर्तिदाद का सबसे बड़ा मरकज यमामा था, जो खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उखाड़ फेंका और झूठे नबी को हलाक करके उसकी लाश की नुमाइश की गई। उसके पैरोकारों में से कहा गया कि मुसलमा के पास मौजों की ताकत होती तो तुम्हारे 40,000 से ज्यादा लश्कर का ये हशर 13,000 आदमियों के हाथों न होता। मुसलमान यमामा की गलियों में ऐलान करते फिर रहे थे, औरतें मत डरें, किसी को लौंडी नहीं बनाया जाएगा। शहर के अंदर किसी मर्द, बच्चे या औरत पर हाथ नहीं उठाया जाएगा। मुसलमान फरेबकार था, उसने तुम सबको धोखा देकर तुम्हारे घर उजाड़े। यमामा पर खौफ व हरास और मौत की वीरानी थी। औरतें शहर से बाहर निकलने से डरती थी। उन्हें मुसलमानों से कोई डर और खदशा नहीं रहा था। वो अपने आदमियों की लाशें देखने से डरती थी। वो शहर की दीवार पर जाकर बाहर का मंजर देखती। उन्हें गिद्धों, गीदड़ों और भेड़ियों की खौफनाक आवाजें सुनाई देती। ये सब लाशें खा रहे थे।